یہ حقیقت ہے، میں جہاں بھی انٹرویو کے لیے گیا ہوں تو پی ٹی آئی کا سپورٹر مجھے زیادہ ملا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پوری بات نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔ تحریک لبیک کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے، یعنی کہ اس کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ صرف عمران خان۔ ہاں بات کرو نا یار، ایک تو بات بھی کوئی اور پی ٹی آئی والا ہے تو آ جائے، اس سے بات کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کہ لوگ کس کو ووٹ دے رہا ہے، تو پوچھتے ہیں، دوست کھڑے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں یہاں کے ڈیرہ اسماعیل خان کے، تو دیکھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ السلام علیکم سر۔ بھائی صاحب، الیکشن کا کیا چل رہا ہے؟ کون زیادہ جیت رہا ہے یا کس کی پوزیشن اچھی ہے؟ یہاں پہ تو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی زیادہ، پی ٹی آئی کی ہے، تو یہاں یعنی کہ نظریاتی ووٹ ہے یا شخصیت پرستی زیادہ ہے؟ ہاں، شخصیت پرستی زیادہ ہے، شخصیت پرستی زیادہ ہے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ ہم تو مولانا کو جائیں گے، جے آئی کو، مولانا فضل الرحمان کو۔ جی۔ کوئی خاص وجہ ہے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے کی، یا وہی بھئی ہم شروع سے دیتے آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ نظام کو بدلے گا اور یہ خان کو بھی بدلے گا، انشاءاللہ ترقی دے گا۔ اچھا، بھائی صاحب کہتا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو دیں گے، وہ نظام کو بدلے گا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان کو تو کئی چانس مل چکے ہیں، ایک نئی جماعت ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ادھر ہی ترقی لے کے آئیں گے ہمیں اسی کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ آپ صرف ترقی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے علاقے کو ترقی دے گا، روزگاری دے دے تاکہ غریب کو بھی کوئی مل سکے۔ میں میاں والی سے آیا ہوں، تو میں تو یقین کر، یہ ہم سنتے ہیں پنجاب سے کہ جو کے پی کے کا لوگ ہے نا، وہ مذہبی لوگ زیادہ ہوتا ہے، مذہب کے نام پہ ووٹ دیتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کے نام پہ ووٹ دیں گے۔ ہم جے یو آئی کو دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے۔ اچھا، یعنی کہ پکا جے یو آئی کا ہے۔ اچھا، اور السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کی نظر میں کون سی جماعت صحیح ہے جس کو ووٹ دینا چاہیے؟ عمران خان کو ہم ووٹ دے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے گا۔ اچھا، پکے عمران خان کو دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے، تو کوئی خاص وجہ عمران خان کو ووٹ دینے کی؟ سچا آدمی ہے اس وجہ سے۔ اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کی جماعت تو ابھی پارٹی ہے ہی نہیں، لیکن اس کا نام پہ تو لوگ ہے، اس کو دیں گے۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو بک جائیں گے، بلکہ آپ کا جو چیئرمین ہے ابھی گوہر علی خان، اس نے بھی خود ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ پکے کھڑے نہیں بکے گا انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ یقین کے ساتھ۔ تو تحریک لبیک کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ہم عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں دے گا۔ نہیں، ووٹ آپ عمران خان کو دے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک کو دے۔ تحریک لبیک کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے، یعنی کہ اس کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ صرف عمران خان۔ ہاں بات کرو نا یار، ایک تو بات بھی کوئی اور پی ٹی آئی والا ہے تو آ جائے، اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا سمجھتے ہیں کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ عمران خان کو ووٹ دینا چاہیے، پی ٹی آئی والوں کو۔ کوئی خاص وجہ تو یہ حالات آپ خود سارا پاکستان دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، حالات تو یقیناً ہر آدمی دیکھ رہا ہے اور شروع سے دیکھتا آ رہا ہے۔ اصل خاص وجہ کیا ہے عمران خان کو ووٹ دینے کی؟ میں خود میاں والی کا ہوں۔ اچھا، بس عمران خان تو ہمیں بچپن سے پسند ہے اور جانتے ہیں کہ یعنی صرف اپنے پسند کی وجہ سے دینا ہے، کوئی وہ اچھا کام کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، اپنی پسند کی بنیاد پہ ووٹ دینا۔ بالکل، کام تو کیا عمران خان نے ساری دنیا جانتا ہے۔ کون سا کام کیا ہے مثال کے طور پر؟ سارے کام کیے جو پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ نہیں، پتہ تو ہے، لیکن شاید مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بتا دیں کہ بھئی عمران خان نے یہ کام کیا ہے جو شاید مجھے معلوم نہیں ہے، کہ بھئی ہم فخر محسوس کریں کہ خود میرا میاں والی کا میں نے
इमरान खान को फंडिंग भी दिया है, इमरान खान की मेंबरशिप भी मेरे पास थी, करता हूँ, मेरा उससे इख्तलाफ, मैं उसको नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, तो शायद कोई वजह हो जाए, क्या हो जाए? बस यही है कि हम उसको बचपन से जानते हैं और हमें पसंद है इमरान खान। भाई साहब, मैं मियाँ वाली में जितना भी इंटरव्यू किया तो एक ही बात पीटीआई के सपोर्टर कहते हैं कि जी बस हमको मालूम नहीं है, हम बचपन से पसंद करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, यानी कि कोई सही जवाब नहीं दे सकते कि उनको क्या क्या वोट देना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। किसको वोट देना चाहिए? वोट तो यार आपको पता है आजकल इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान में इमरान खान से अलावा मेरा ख्याल किसी को भी नहीं होगा वोट इंशाल्लाह। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये हकीकत है, मैं जहाँ भी इंटरव्यू के लिए गया हूँ तो पीटीआई का सपोर्टर मुझे ज़्यादा मिला है, और ये भी हकीकत है कि वो पूरी बात नहीं करते, भाग जाते हैं। ये भाई माशाल्लाह मेरे को समझदार लग रहा है, ठीक है, मुझे समझदार लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इसके ऊपर मैं सवाल जवाब करूँगा ये मुझे जवाब देंगे। अक्सर पीटीआई वाले लोग झगड़ा करके चले जाते हैं, कई जगह में तो मेरा कैमरा भी छीन लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये समझदारी नहीं है। अगर आप जिस भी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास उसका दफा करने के लिए कुछ होना चाहिए, ऐसी बात है ना जी? जी जी ठीक है ना। तो हम भाई से बात, भाई साहब क्या वजह है इमरान खान को लोग क्यों पसंद करता है? यार इसमें तो शक नहीं है, अल्लाह ताला एक बार जिसको इज़्ज़त दे तो उसको इज़्ज़त दे देता है, लेकिन बस ये कुदरती हमारे दिल में उसके लिए प्यार है। अच्छा, यानी कि ये कुदरती है, कोई वजह नहीं है कि जिस वजह तो आप सब लोगों को सामने है। पाकिस्तान में जब वो आया है दहशतगर्दी के खिलाफ वो बिल्कुल लड़े हैं। मिसाल हमारा पाकिस्तान का ताल्लुक उसने बहुत बड़ा है जी इस्लामी मुल्क में, लेकिन हम बस कुदरती उसकी दिल, हमारे दिल में उसके लिए एक प्यार है। बस इमरान खान से अलावा हमारा मुंह में और कोई नाम नहीं आता। अल्लाह ना करे ये ज़िंदगी है, अभी उसको सज़ा भी हो गई है, ठीक है। इंसान के साथ मौत फौत भी है, मर भी सकता है, कोई भी मर सकता है, लेकिन ये जो पीटीआई के लोग कहते हैं कि सिर्फ इमरान ही है, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान मर जाता है, कोई भी मर सकता है, जब वो पार्टी छोड़ देता है फिर आप किस तरह, आपने तो यही कहा है कि सिर्फ इमरान ही है, उसके बाद तो कोई अच्छा ही नहीं है, क्या वजह? यार इस पाकिस्तान में तो हमारा नज़रिए में तो कोई इस तरह बंदा नहीं है, क्योंकि वो पहले तो ये भुट्टो साहब था, हमने सुना था, देखा नहीं था। जी जी। जो भुट्टो पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त एक नंबर सियासतदान किया, और दूसरा ज़ियाउल हक का हमने सुना था, तीसरा नंबर हमने पाकिस्तान में इसी वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है बग़ैर इमरान खान से। तो इंशाल्लाह हमारा ज़िंदगी उसके साथ होगा और इसके साथ रहेगा। एक सवाल, हमारे पंजाब में अक्सर ये कहा जाता है कि जो केपीके का लोग है वो मजहबी लोग है, इस्लाम पसंद लोग है, ठीक है, इस्लाम पसंद लोग है। तो मैं आखिरी सवाल करूंगा, इस्लाम के हवाले से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात हैं, क्या वो सही हैं? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये तो 100% झूठ है। अच्छा। इस्लाम में उसने क्या नुकसान बचाया है? अक्सर उसके गैर सियासतदान लोग जो है वो यही कहते हैं ये यहूदियों के एजेंट है। आप मुझे ये बताओ यहूदियों के एजेंट में उसने किया क्या? उसने जो सबसे बड़ा काम किया है, उसने आसिया मलूना को, जिस गुस्ताखा ने 3 अदालतों में उसको सज़ाए मौत हो चुकी थी, जिसने अदालत में खड़े होकर कहा था कि हाँ मैंने गुस्ताखी की है, और ननकाना साहब की एक छोटे से गांव में आम अनपढ़ सी लड़की, जिसको पूरा यूरोप फ्रीडम ऑफ स्पीच का अवार्ड देता है कि ये हमारी ब्रेव लड़की है कि इसने पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क में रह के उनकी नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको रिहाई करने का बहुत बड़ा इमरान खान की हुकूमत में हुआ उसका इल्ज़ाम है। यार ये हम आपको क्या बताएं, सच तो ये मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में इसी वक्त कोई इस्लामी निज़ाम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपकी कत में देख ले, ये निज़ाम जो है वो सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये किसकी अशारों पे चल रहा है, क्या मसला चल रहा है, वो सब पता है। लेकिन बस हमारा दिल, हमारा बात का यही है, जो इमरान खान इस पाकिस्तान में सच्चा और ईमानदार लीडर आए, और इंशाल्लाह कोई इस तरह आएगा नहीं। अच्छा, यानी कि आसिया मलूना के बारे में आपको इल्म नहीं है? नहीं, कोई मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना इल्म है, इतना इल्म है जो भाई इस पाकिस्तान में सियासत जो है वो किसी और
और के इशारों पे चल रहा है। अच्छा, अगर किसी और के इशारों पे चल रहा है तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के कारनामे गिनने नहीं चाहिए? या कोई भी लीडर है, नवाज़ शरीफ है, इमरान खान है, या साद रिजवी अगर आता है और वो 5 साल बाद कहता है कि भाई मैं तो किसी के इशारे पे चल रहा था। खिलाफ जिस तरह इमरान खान के खिलाफ उसके खिलाफ चला था, इस तरह कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नहीं चला है। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ इमरान खान चला। अच्छा, एक बात अभी एक सुने, मैं यही पहले कह चुका हूँ कि बहुत सारे PTI वाले दोस्त, ठीक है, इमरान खान की दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं। मैं अभी तो नेट का दौर है, मैं अभी आपको लिंक दे देता हूँ, ठीक है, सर्च कर सकते हैं। मोईद पीरज़ादा के साथ इमरान खान का इंटरव्यू हुआ है, मोटरवे के ऊपर लड़की के साथ ज़्यादती होती है और मोईद पीरज़ादा उसको कहता है कि इमरान खान इसको सरेआम फांसी दो। इमरान खान कहता है मेरा दिल है लेकिन अमेरिका नहीं मानता है। ये मैं अभी आपको निकाल के दे सकता हूँ, ठीक है जी। नहीं, जैसे तो हर पार्टियों में नहीं, मैं ज़्यादती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादती की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो कहता है ना कि इमरान खान ने अमेरिका को टक्कर दिया है, ठीक है। अगर आपको शायद मालूम हो तो फ्रांसीसी सफ़ीर के वक्त इमरान खान ने कहा था कि अगर हम सफ़ीर निकालते हैं तो हमारी मैशत ख़त्म हो जाएगी। यानी वो ये कहता था कि लबैक वाले ठीक हैं, उनका मुतालबा जायज़ है, लेकिन अगर सफ़ीर हम निकालते हैं तो हमारी मैशत, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये कहता है ना कि भाई फ्रांस ने कोई गलती नहीं किया तो फिर हम मानते कि भाई वो नहीं मानता, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि उन्होंने गुस्ताखी की है, लेकिन छोड़ते इसलिए नहीं है कि हमारी मैशत, यानी कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त है उससे ज़्यादा पैसे को वैल्यू दी। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये सब माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, ये उसके बयानात मौजूद हैं। नहीं सर यार, ये हम इसको क्या बताएं अब, ये बिल्कुल एक मुंह कहने वाले बात है जो भाई यानी ये झूठ है, ये बिल्कुल ये भाई कहता है ठीक है, बात ठीक है, ठीक है, मैं मान गया हूँ, ये भाई कह रहा है झूठ है। एक मिनट, हम उसको पसंद किस लिए कर रहे हैं? आपको मैं नंबर 1 उसका बाल बताता हूँ। वज़ीरिस्तान बाजौर एजेंसी, यहाँ पे ड्रोन अटैक हो रहा था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितना मजलूम शहीद हुआ है। इसके खिलाफ इमरान खान पहला वाहिद लीडर था जिसने ये सब कुछ बंद किया। अच्छा, दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र अफ़गान मुत्तहिदा में किया था, ये पाकिस्तान में पहला वज़ीर आज़म था जिसने ये किया था। वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताखी हो, उस पर मुसलमानों का दिल दर्द। बिल्कुल ये हम बस इस बातों पे उसके साथ बस मिले हुए। बस आखिरी सवाल, इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की है, मैं मान रहा हूँ, उसने कहा कि जो नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है हमारे को तकलीफ़ होती है, लेकिन जब वो अमेरिका से वापस आया था उसने आसिया मरूना को रिहा किया, शकूर कादियानी को रिहा किया, सामन मसीह को, उसने 10 गुस्ताखों को रिहा कर दिया और इसका प्रूफ इमरान खान ने BBC इंटरव्यू को भी दिया है। तो मेरे ख्याल में आपको इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। चलो ठीक है, गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी तो हर जगह में हुआ है। ठीक है।